Hello everyone, this is Sanket Sharma and again I will start the session. Whatever we have done in the previous class, I will proceed further about the study about some factors of climate including the precipitation or there are some types of pressures we have already discussed in the previous class. Shifting of pressure wells like the equatorial low pressure wells where air mass rises, and then the subtropical high pressure wells where the air mass and winds are sinking there, and on the subpolar low pressure wells where these air mass or these pressures which is generated by the temperature difference or the pressure difference caused by the ocean currents which is flow mainly from the or come from the tropical areas due to the winds carries the some pressures or the temperature difference cause the difference in the temperatures of the ocean surface. So now we have already done the some basics of factors. Now move towards the condensation. Condensation is just the change in the temperature or change in the forms of any liquid, solids and the any gaseous matters. So condensation means water vapor converts into water droplets और इसी ड्रॉपलेट्स को क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन और बोले तो रेनफॉल. इट मीन्स प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो भले वो फिर मॉइस्चर के फॉर्म में आए या फिर हेलस्टॉर्म के फॉर्म में आए, सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म में आए. तो प्रेसिपिटेशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा बट आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो प्रेसिपिटेशन मीन्स द फॉल ऑफ मॉइस्चर. Fall of moisture means it may be water drops, it may be sleet, it may be hailstorms. These are the some forms of the precipitation or rainfall. Now we are discussing on the topics that is called as the condensations. So if we assume like this is any air mass which is having the gaseous particles which is in the form of water vapor. So these particles, whichever is the trap in this particular structures, carries the latent heat. Latent heat, something which is behind the particles, that is a trap in the particles which is not shown easily. It is just the behind the particles, like it is heated by the temperatures, so it convert into the latent heat, and that is called as the latent heat of
latent heat of condensation, latent heat of condensation। अब ये latent heat of condensation कहाँ पे हो रहा है मेनली? तो ये हो रहा है इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो वाटर जो ओशन सरफेस जो है किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। फर्दर जब ये एयर मास जो है, क्लाउड जो है, ये जैसे ही राइज करते हैं, तो राइज करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी एटमॉस्फेयर में जाएंगे। तो ये सारे के सारे जाते कहाँ हैं? एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में? दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रोपोस्फेयर। एंड समटाइम्स इट एंटर्स इनटू द stratosphere, where cause the turbulence. If you travel by any airplanes, that you feel the turbulence. So when if we consider this is the surface of equator, this is the 0 degree equatorial low pressure. So temperature is very high, so these air mass tend to rise। तो ये जैसे ही यहाँ से राइज होना स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे ये एयर मास ऊपर उठता जाएगा, हाइट पे कुछ जाएगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? वी नो दी टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ हाइट। तो जिस हाइट पे ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसको बोला जाता है क्या चीज़? नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट। और ये नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है, इसका टेम्परेचर ये 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर कमता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे जैसे हम लोग किलोमीटर में ऊपर बढ़ते जाएंगे, टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलते कि यहाँ का टेम्परेचर, यानी कि इस वाटर वेपर का जो टेम्परेचर है, इस एयर मास का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस मान के यहाँ पे चल रहे हैं। 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ आ गया। तो रफली जैसे ये आगे बढ़ेगा ये 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, तो ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा टेम्परेचर इसका लो होते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जो ये जो वाटर वेपर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। That is the gas converted into the liquid, that is called as the condensation. So here I am writing latent heat of condensation. We can also say the latent heat of vaporization. यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, मेनली ये किसके फॉर्म में है? ये वेपर के फॉर्म में है। तो हाइट पे जैसे ही जाता है तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ करेगा। तो 27 है, तो यहाँ पे 6.5 फर्दर हम लोग माइनस करते जाएंगे। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि वो जो ये क्लाउड जो है 1 किलोमीटर ऊपर ही बढ़ा होगा, उससे ज़्यादा भी क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लाउड मूव ऊपर कर सकता है। तो लाइक द टेम्परेचर्स ऑफ दिस एयर मास इज़ बिकम दी 13 डिग्री सेल्सियस। It means these air mass or clouds converted the water vapor into the water droplets. Water droplets. अब वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे ही कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, जितने भी सारे यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सब एक दूसरे पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जैसे ही अप्लाई होगा, इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी क्या होगा?
आपस में सारे के सारे पार्टिकल्स कोलाइड करते जाएंगे, बट यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा चेंज आता नहीं है कि ये यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। बट इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या चीज़ है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वेपर के फॉर्म में है और यहाँ पे किसके फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो यहाँ पे जैसे ही ये टेम्परेचर यहाँ का 13 डिग्री सेल्सियस हो गया, इट मीन्स द relative humidity will increases. So when relative humidity reach to the 100 more than 100%, that is cause the rainfall. Then this is the area where the rainfall takes place, mainly in the equatorial regions throughout the years, because the temperature is very high. So these area receives, mainly the 10 degree latitudes north and south receives very heavy rainfall throughout the year. So this is the reasons, because the Amazon rainforest are found in the Brazil, mainly on this 10 degree latitude. So if rainfall is the high, so these areas where the trees were found, that is called as the tropical evergreen forest. दिस इज़ द रीजन्स बिहाइंड इट। हम लोग इसके बारे में वेजिटेशन जब चैप्टर कवर करेंगे तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कितना रेनफॉल किसी भी एरिया के अंदर में रिक्वायरमेंट होता है कि वहाँ का वेजिटेशन कवर हरा भरा रहे और वहाँ का मतलब ग्रीनरी पार्ट वहाँ पे ज़्यादा दिखे। ग्रीनरी पार्ट इसलिए दिखता है, ग्रीनरी पार्ट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ के ट्रीज़ जो हैं अपने लीव्स शेड नहीं करते, वहाँ पे भी पर्टिकुलर सीज़न में शेड करते हैं, बट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसके वजह से वो वहाँ के जो ट्रीज़ जो हैं वो ग्रीन दिखते हैं, इसके वजह से इनको बोला जाता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को कहीं पे डाउट होता है इसमें तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कंडेंसेशन समझ चुके हैं, अब प्रेसिपिटेशन पे आते हैं और उसका कुछ जो टाइप होता है, मेनली दी कॉन्वेक्शनल रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल किसके वजह से होता है, हम उसके रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पीछे का लेक्चर यानी कि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले देख ले, ताकि आगे का जो भी लेक्चर हैं वो आपको इजीली समझ में आए और कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप, क्योंकि इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और चीज़ों को अच्छे से समझा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अगर कोई आती है दिक्कत तो आप कमेंट में बेशक पूछ सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। Next is the precipitation or the rainfall. अब precipitation rainfall अभी just बोले हैं क्या चीज़, the fall of moisture in the form of liquid, it may be gas, it may be solid. So fall of moisture। अब मॉइस्चर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इसका जो शेप जो है, इसका फॉर्म जो है वो चेंज हो रहा है। फॉल ऑफ मॉइस्चर किसके फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। गैस जैसे फॉग जो होता है
मेनली इन द विंटर सीजन गैस के फॉर्म में, और थर्ड जो है किसके फॉर्म में, वो सॉलिड के फॉर्म में, लाइक द हेलस्टॉर्म, स्लीट, ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ precipitation. Okay, so mainly in the solid parts, that is we can say the sleet, it means the hailstorm plus water, hailstorm plus water, it means जब बारिश कभी होती है तो जब क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन के वजह से कभी कभी क्या होता है कि वाइट के आप वाइट के फॉर्म में आप पत्थर का एक शेप देखे होंगे कि वो रेन के साथ फॉल होता है, डैट इज़ कॉल्ड एज दी हेल स्टॉर्म और स्लिट. नाउ द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कौन कौन से टाइप के रेनफॉल होते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं, हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे. तो इसमें फर्स्ट जो होता है मेरा वो क्या चीज़ होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल. कन्वेक्शनल रेनफॉल. सेकंड जो है उसका नाम क्या चीज़ है, ओरोग्राफिक रेनफॉल. और थर्ड जो है उसका नाम क्या चीज़ है, फ्रंटल रेनफॉल. तो ये 3 तरह के रेनफॉल होते हैं. इसके पीछे का रीज़न क्या चीज़ है हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसके बारे में. तो सबसे फर्स्ट जो है यहाँ पे पहला जो है उसका नाम क्या चीज़ है, कन्वेक्शनल रेनफॉल. अब कन्वेक्शनल रेनफॉल के पीछे का रीज़न क्या चीज़ है और ये कैसे अकर होता है आप लोग ध्यान से समझेंगे. लाइक वी कंसीडर दिस इज़ द सरफेस एंड here is the any water bodies. यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है और यहाँ पे क्या चीज़ है, that is the land mass. Here is the some trees which is aligned with it. मैं यहाँ पे प्लेन रीजन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मेनली कि प्लेन रीजन्स में ये कैसे ऑकर होता है. लाइक here is the sun. It may be this region is tropical, it may be temperate. टेम्परेट अगर बोल रहे तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं, मेनली जहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बनता है तो वो है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे. और थर्ड जो है ये इक्वेटर. ये 3 लैटिट्यूड है हमारे पास. और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये बारिश यहाँ पे किसके वजह से होता है मेनली. तो जैसे ये सनलाइट है, ये सन है, तो यहाँ से आने वाली जो भी लाइट हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसोलेशन. तो इंसोलेशन के वजह से क्या होगा, ये वाटर बॉडीज़ जो है ये इस वाटर के यहाँ जो ये वाटर बॉडीज़ जो है यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर चेंज होना स्टार्ट होगा. और यहाँ पे भी क्या होगा, सनलाइट जो है इस अर्थ सरफेस पे इंसिडेंट होगा यहाँ पे. तो टेम्परेचर दोनों का क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा. और इसके वजह से क्या होगा कि प्रेशर जनरेट होगा. और इसी के वजह से यहाँ पे एक लोकल विंड चलता है जिसका नाम क्या चीज़ है, सी ब्रीज एंड land breeze, mainly in the coastal areas. or if we discuss in the
any regional area mainly in the closed packed area where the convection is take place। so ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या है, कोई वाटर बॉडीज़ है, यहाँ पे इंसुलेशन की वजह से क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर और इस बॉडी का यानी वाटर बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, राइज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर ट्रैप होना स्टार्ट होगा, मॉइस्चर क्या होगा फिर राइज होना स्टार्ट होगा। कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से एयर मास क्या करेंगे, राइज होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही यहाँ पे राइज होगा तो ये इस ढंग से एयर मास जो है क्लाउड फॉर्म करना यहाँ पे स्टार्ट करेगा, ये ऊपर उठना स्टार्ट करेगा इस रीजन से। और ये क्या करेगा, यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि विंड जो है इस एरिया में कौन सा विंड चलता है, ट्रॉपिकल रीजन में मेनली ट्रेड ईस्टर्लीज। तो ट्रेड ईस्टर्लीज जैसे ही फ्लो करेगा तो ये भी दीज रीजन्स आर दी सर्कुलर इन नेचर। सो ये जो जितने भी सारे क्लाउड जो हैं ये सब क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अपना RH बताए थे भी जस्ट कंडेंसेशन में, जैसे ही एक हाइट पर पहुँचेंगे तो वहाँ पे RH जैसे ही मोर देन यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो टेम्परेचर चेंज के वजह से होता है, तो RH जैसे ही क्या होगा 100% क्रॉस करेगा तो रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि किसके वजह से हो रहा है, ये कॉन्वेक्टिव करंट जनरेट हो रहा है इस क्लाउड के अंदर में। कॉन्वेक्टिव करंट्स जैसे ही जनरेट होंगे तो ये एयर मास जो है राइज करेगा और यहाँ पे RH को 100% करके, RH को 100 मोर देन 100% करके क्या करेगा, यहाँ पे इस एरिया में रेनफॉल करवाएगा। तो सबसे पहले आप लोग समझ चुके हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल किसके वजह से होता है कि टेम्परेचर जैसे ही किसी रीजन का हाई होगा तो वहाँ से वाटर बॉडीज़ से क्या होंगे कि मॉइस्चर ट्रैप होकर के ऊपर उठना स्टार्ट होगा। जैसे ही मॉइस्चर ऊपर उठते 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 एक लेवल तक पहुंचेगा तो यानी कि RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि इस एयर मास का टेम्परेचर जो है वो कम होगा। कंडेंस जो ऑलरेडी यानी कि वेपर के फॉर्म में जो यहाँ पे एयर मास है वो किस में कन्वर्ट होंगे, कंडेंसेशन की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे और उसके वजह से क्या चीज़ होगा, रेनफॉल होगा। डैट इज़ कॉल्ड एज दी कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखेंगे क्या चीज़, ओरोग्राफिक रेनफॉल की। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या चीज़ होता है। आप लोग इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में नोट करते जाएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, कॉन्सेप्ट को भूले नहीं। और आप लोग इजी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिखाने के लिए बैठेंगे तो टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा और कॉन्सेप्ट पीछे रह जाएंगे, तो वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बस डायग्राम फॉर्म करते चले और कॉन्सेप्ट को सीखते चले। सेकेंड जो है मेरा क्या चीज़ है, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक का मतलब सिंपल से यहाँ वर्ड आ रहा है एक क्या चीज़, ओरो। ओरो मीन्स माउंटेन, that is the rain caused by the mountain. Like this is the any regions or this is the plateau regions. This is the regions of high altitude. सेम चीज़ जैसे लैंड पे हो रहा था, ज़मीन पे हो रहा था, सेम यहाँ भी क्या होगा कि माउंटेन वाले रीजन में भी टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या चीज़ है कि हाईलैंड है, माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे क्या होंगे टेम्परेचर
हाइट यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो टेम्परेचर क्या होंगे, हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो कौन से कैसे डिक्रीज होगा, वो नॉर्मल लैप्स रेट से, नॉर्मल लैप्स रेट। और नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, टेम्परेचर कितना से डिक्रीज होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर्स। ओके, so if we discuss about the or we talk about the Himalayan region, so Himalaya also divided into some parts that is called as the Trans Himalaya, Middle Himalaya, Shivaliks. So these are the some ranges. So highest peak of the mountain range is the Himalaya mountain range is the Mount Everest. So the average हाइट अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इस रीजन का तो 6000 मीटर होता है। तो यानी कि 6000 मीटर का मतलब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का मतलब हो जाता है, अगर ये पर किलोमीटर यहाँ पे डिक्रीज होगा तो ऑलरेडी है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तो किसी भी रीजन में अगर प्लेन्स के, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये प्लेन वाले रीजन हो गए, ये सारे प्लेन वाले रीजन हो गए और ये दोनों के बीच में जो कोई होम वगैरह होंगे, घर वगैरह होंगे, तो उसको क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, वैली। ठीक है, और यहीं पे एक विंड भी जनरेट होता है, उसको क्या चीज़ बोला जाता है, वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज। और दी वैली ब्रिज दैट इज़ दी मेनली कॉज्ड बाय दी टेम्परेचर डिफरेंस। सो इफ़ यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि एयर मास जो है, यहाँ का एयर मास क्या होगा, इस माउंटेन के स्लोप के हिसाब से, ये माउंटेन के स्लोप के हिसाब से क्या होगा, ये राइज करना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ से उठना स्टार्ट करेगा, ये राइज होगा यहाँ से। यहाँ से राइज करेगा ये। तो ऑलरेडी यहाँ पे माउंटेन वाले रीजन में क्या होगा कि टेम्परेचर ऑलरेडी लो होगा। हम लोग क्या देखे थे कि टेम्परेचर प्लेन वाले रीजन में 27 लिए थे, तो यहाँ का टेम्परेचर हम कितना लेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अगर 20 ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो आगे जैसे ही ऊपर उठेगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाएगा और यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे जाते जाते 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा तो RH क्या होगा, इसके वजह से 100%, मोर देन 100%। जैसे ही RH यहाँ होगा तो इस वाले पार्ट में, यानी कि इस माउंटेन रेंज के वेस्टर्न वाले पार्ट में क्या चीज़ हो जाएगा, रेनफॉल, यहाँ पे रेनफॉल क्रिएट हो जाएगा। इस जगह पे बारिश यहीं पे होके ख़त्म हो जाएगा और इस वाले पार्ट में ये जो कोई क्लाउड अगर थोड़ा सा बहुत बच रहा है, एयर मास बच रहा है, तो क्या होगा, ये नीचे जाके सबसाइड कर जाएगा और यहाँ पे सबसाइड होने की वजह से क्या होगा, कोई रेनफॉल अकर नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेन शैडो एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश इस तरह में कंपैरेटिवली, इसके वजह से वर्षा क्या होगा, यहाँ पे बारिश अगर ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि कोई रीजन बस जो है ये एयर मास जो है उठते उठते इस हाइट को क्रॉस कर दिया और कुछ बारिश जो है 10% मान के चले कि यहाँ पे आकर के क्या होगा कि रेनफॉल यहाँ पे ऑकर हो रहा है, फॉर्म में आ रहा है, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। किसी कारण बस क्या हुआ कि हाइट ज़्यादा होने की वजह से सारे के सारे रेनफॉल इस पार्ट में ही हो गए, इधर में बारिश नहीं होगा। सेम फेनोमेना कहाँ पे होगा, इस वाले रीजन में भी होगा। और यहाँ पे क्या चीज़, इस रीजन में जैसे ही बारिश होगा तो हाइट अगर कम है तो हो सकता है कि एयर मास जो है मूव करके दूसरे पार्ट में भी जा सकता है और दूसरे पार्ट में जा कर के क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे ही लो होगा तो वहाँ पे भी क्या करेगा, वो रेनफॉल क्रिएट कर सकता है। तो सब बस इसका जो मेन रीज़न जो है बारिश होने का, वो बस एक ही चीज़ है, क्या चीज़, टेम्परेचर डिफरेंस और दी प्रेशर डिफरेंस। जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे प्रेशर ऑलरेडी कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशनशिप क्या चीज़ देखा है कि टेम्परेचर इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द प्रेशर। दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, तो एक दूसरे के साथ वो चेंज होते रहते हैं।
तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, यहाँ पे बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे जो विंड यहाँ पे जनरेट जो होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ समर्स, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट यहाँ पे हो जाएगा। हाई प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा, नीचे वाले एरिया में क्या चीज़, लो प्रेशर। तो विंड कहाँ से फ्लो करते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे ही यहाँ पे विंड आएंगे क्या होगा, इसको कौन सा बोलेंगे, डेट इज़ द माउंटेन ब्रीज। माउंटेन ब्रीज। और सर्दियों के टाइम में यानी कि विंटर कंडीशन में क्या होगा कि विंड यहाँ पे इस वाले नीचे वाले पार्ट में क्या होगा कि इंसोलेशन मतलब सूर्य की किरणें क्या होगी यहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। उसके वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर विल बी लो, सो प्रेशर विल बी हाई। तो यहाँ पे कैसे, यानी कि हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाएगा। तो हाई प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा, यहाँ पे इंसुलेशन इस वाले पार्ट में क्या होगा, इंसुलेशन। यहाँ पे इंसुलेशन जैसे ही आएगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा। तो विंड जो चलेंगे यहाँ से यानी कि ऊपर की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड एज दी वैली ब्रिज। यही दोनों क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। मेनली दिस इज कॉज्ड ऑन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स। ओके, आई होप you understand the concept of the orographic rainfall। अब हम लोग थर्ड पे आते हैं और उसका नेम जो है वो है फ्रंटल रेनफॉल। और ये फ्रंटल रेनफॉल जो है मेनली कहाँ पे होता है, तो वो होता है टेम्परेट रीजन में। फ्रंट फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के कोलाइड करने से होता है। जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ओशन करेंट्स के बारे में, कि ओशन जब हीट होता है, समुद्री जलधारा जो कि ट्रॉपिकल एरिया से चलकर पूरे वर्ल्ड में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कहाँ पे, कौन से लैटिट्यूड कौन सा था, वो 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जाकर के वो कोलाइड करते हैं। उसके वजह से ये फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और फ्रंट फॉर्मेशन से ही दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट जैसे ही होगा तो वहाँ पे रेनफॉल अकर होता है, दैट इज़ द फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल। मैं यहाँ पे कुछ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। This is the part of Arabian Peninsula, then this is the India, and further we move all parts of China's, Russia, and we enter in the Europe. Finally here are the Spain or some other countries, and finally the meeting of the entire continents. And here is the Greenland, and there are some islands like the Japan, Indonesia. Here is the Madagascar, and in this region somewhere here, स्पेस कम होने की वजह से पूरा डायग्राम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हेयर इज़ दी ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड एज दी ओशिनिया, और नीचे वाले पार्ट में न्यूजीलैंड है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे कौन सा रीजन है, ये इक्वेटर का पार्ट है। दिस इज़ द इमेजिनरी लाइंस। सो equator, then we further move towards the India,
So this is the tropic of Cancer. It is the latitude of 23.5 नॉर्थ, मेनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का बात कर रहे हैं तो। और यहाँ पे क्या होगा फिर सदर्न हेमिस्फीयर में भी। ये साउथ वाले रीजन्स हो गए। तो यहाँ पे जितने भी सारे करेंट्स चलते हैं, मेनली दी ओशन करेंट्स इक्वेटर वाले रीजन्स में और ट्रॉपिकल वाले रीजन्स में मैक्सिमम जो है सबके सब जो ओशन करेंट्स है सबके सब वार्म ओशन करेंट्स हैं। मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में ईस्टर्लीज का प्रिवेल होता है, तो ट्रेड ईस्टर्लीज को हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे। These are the warm ocean करेंट्स। तो प्रेशर बेल्ट्स में हम लोग क्या देखा था, जो जैसे ही ये विंड जो है, ये जो विंड जो चल रहा है यहाँ पे ट्रेड ईस्टर्लीज जो है अपने एरिया में जा कर के, जैसे ही यहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज करेंगे आपस में जा कर के 0 डिग्री पे इस एरिया में, तो यहाँ पे जनरेट क्या चीज़ होगा उसको बोलते हैं हम लोग ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ITCZ, इसको जेड भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं। तो दो तरह के इंग्लिश हैं, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, तो दोनों में अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। तो ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, तो कन्वर्जेंस कहाँ के विंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 23.5 यानी कि ईस्टर्लीज एंड देन दी नॉर्दर्न वाले दोनों पार्ट क्या करेंगे यहाँ पे कन्वर्ज जैसे ही होंगे, तो यहाँ पे विंड डिफ्लेक्ट होकर के अपर कोर्स में जाकर के शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाई प्रेशर डेवलप करेंगे नीचे दोनों वाले पार्ट में, यहाँ भी और नीचे भी। तो सेम जैसे ही ये सब जो विंड जो है और ये ओशन की जो धारा जो है जैसे ही पहुँचती है कहाँ पे 60 डिग्री लैटिट्यूड पे, 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जैसे ही जाएगी वहाँ पे, तो क्या होगा फ्रंट फॉर्मेशन होगा। फ्रंट फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि ये विंड का डायरेक्शन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि विंड का जो डायरेक्शन होता है 60 डिग्री लैटिट्यूड पे वो क्या होता है, वेस्टर्ली डायरेक्शन में होता है। कि विंड कहाँ से आ रही होती है, कि वेस्ट डायरेक्शन से आ रही होती है। तो इसी की वजह से क्या होगा यहाँ पे इस वाले रीजन्स में, यानी कि 60 डिग्री वाले रीजन्स में क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट पे जैसे ही फिर ये विंड जो है 60 से क्रॉस करेगी ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये पोलर रीजन से एक और विंड जो आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर ईस्टर्लीज, दोनों साथ में कन्वर्ज करेंगे। तो यहाँ पे जो ऊपर वाले जो ऊपर से विंड जो आ रहे हैं वो क्या होगा, वो ठंडी वाली होगी, और नीचे से जो जा रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गर्म वाली। क्यों हो रहा है गर्म वाली हवा, क्यों बनेगी फिर धारा, क्यों किसके वजह से बन रही है, वो ओशन करेंट्स की वजह से। कौन सा ओशन करेंट्स, तो वार्म ओशन करेंट्स। वो कहाँ से आ रही है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन से आ रही है, इक्वेटर वाले पार्ट से आ रही है। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे वाले पार्ट से ऊपर वाले पार्ट से वार्म विंड एंड कोल्ड विंड दोनों आपस में आएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्जेंस जोन बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही दो आपस में कन्वर्ज करेगा तो यहाँ पे दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन जनरेट जैसे ही होगा तो दोनों के बीच में क्या होगा, क्या होगा फिर वेपर में वो कन्वर्ट होंगे। वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से फिर वहाँ पे एयर मास क्या करेगा, वो राइज करेगा, और फिर उस रीजन में क्या करेगा, मेनली इन दी वेस्टर्न पार्ट हवा किसके डायरेक्शन में है, तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। तो मेनली जैसे ही विंड ट्रैप का होगी यहाँ पे, तो क्या होगा कि मेनली इन दी
वेस्टर्न वाले पार्ट में यानी कि यूरोप वाले रीजन्स में, यहाँ पे कहीं ना कहीं जाकर के क्या होगा, इधर वाले पार्ट में 60 डिग्री लैटीट्यूड पे क्या होगा, ये बारिश होना स्टार्ट होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल रेनफॉल। और फ्रंट का फॉर्मेशन होगा, उसकी वजह से क्या क्या होगा उससे रेनफॉल, द फ्रंटल रेनफॉल। हम लोग दूसरे डायग्राम से भी देखेंगे, ये वर्ल्ड के डायग्राम पे मैंने फोकस किया है कि बारिश किस रीजन्स में ज़्यादा होंगी, तो वो मेनली इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। ओके, हेयर इज़ द अटलांटिक ओशन। सो अटलांटिक में भी क्या चीज़ है कि मेनली जो वार्म ओशन जो फ्लो कर रही होती है वही सेम और सेम लाइक दी गल्फ स्ट्रीम हो गए, फिर क्रूसियो करंट हो गए, सबके क्रूसियो करंट, गल्फ स्ट्रीम, दीज आर दी सम विंड ओशन करंट्स विच जनरेट दी हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंडीशंस ओवर दी 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड दैट कॉज दी फ्रंट फॉर्मेशन एंड फर्दर फ्रंट फॉर्मेशन लीड टू दी फ्रंटल रेनफॉल। ओके, सो ये हमारे तीनों तरह के रेनफॉल हो गए। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं मॉनसून के तरफ, मेनली दी ट्रॉपिकल मॉनसून। ये सब रीजन्स हो गए कि बारिश किसके वजह से होता है, क्योंकि इंडिया में भी ऑल्टीट्यूड की वजह से फ्रंट फॉर्मेशन तो नहीं बट ओरोग्राफिक रेनफॉल जनरेट होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, इसके वजह से हम लोग आज यहीं तक करते हैं। मैं दूसरे लेक्चर में फिर से मॉनसून के बारे में, इंडिया में मॉनसून कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉनसून से पहले हम लोग सीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सीज़न होते हैं। सो सीज़न डिस्कस करके फिर उसके बाद जो भी सारे फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के, वो इंडिया के एस्पेक्ट में जेट स्ट्रीम कहाँ से जनरेट होते हैं, मेडिटेरेनियन पार्ट में जस्ट अभी जो ड्रॉ किया था फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये विंड सारे जनरेट होते हैं। और लो प्रेशर कंडीशन इंडिया में डेवलप होता है मेनली इन द मेस्क्रीन हाई नियर दी सदर्न पार्ट ऑफ द Africa. So I'll see you tomorrow. So bye today.